मैंने एंड्रू टेट की वीडियोस बहुत ज़्यादा 2020 में देखी एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी कंट्रोवर्शियल फॉर मी टू से दिस, लेकिन आई एग्री विद मोस्ट ऑफ व्हाट ही इज सेइंग. Your job as a creator is to polarize audiences. That is what you're here to do. What do you think a man's purpose in today's world is? If you were to name like the top 3 side hustles that anyone can easily do you feel like feeling low, feeling depressed, feeling anxious also has something to do with not having something to look forward to? Assalamu alaikum and welcome to Pakistan Observer podcast. मेरा नाम अब्दुल्ला मलिक है और मेरे साथ आज मौजूद हैं उज़ैर. Uzair, thank you so much for being at Pakistan Observer and welcome to the podcast. Thanks for having me. So Uzair, you talk to a lot of people and you get a lot of questions. A lot of people लोग बहुत तरह के आपसे सवालात पूछते हैं on your content creation site. What's the most interesting question you've ever been asked, or the most strangest sort of question जो आपसे किसी ने पूछा है? The strangest sort of question I've ever been asked. That's a very good question. I can't specifically center it down to one specific question, but I would say कि बहुत ज़्यादा लोगों के बहुत weird किस्म के queries होती हैं. अक्सर लोग जो है वो बहुत लंबे messages कर देते हैं जिसके अंदर वो पूरी अपनी life situation को पेश कर देते हैं. And I think it is because जिस demographic को मैं speak कर रहा हूँ, ambitious young men, वो अपनी ज़िंदगी के अंदर guidance के बगैर चल रहे हैं. And उस guidance के बगैर चलने की वजह से they don't really have a clear roadmap as to how to navigate their life as a man. I think कि बहुत ज़्यादा there's a lot of fluff out there, there's a lot of wrong content to consume out there, there's a lot of entertaining content out there, and I think कि उसकी वजह से जो है वो अक्सर गुमराही की तरफ चले जाते हैं वो. And I feel like there's not enough educational content creators in Pakistan, and I think it is an honor for me to be spearheading this movement, and I hope to become the leader in this industry, inshallah. Inshallah, and I think you will. The sort of potential and the sort of conversations that we've also had, I have no doubt that you will absolutely become that sort of leader for all of us young boys in Pakistan. Lekin, you mentioned ambitious young boys and you're trying to give them the right sort of guidance. There's also many other people that are trying to give these younger boys, including myself, the right sort of guidance. One of them being Andrew Tate. Thoughts on him? Thoughts on him? मैंने एंड्रू टेट की वीडियोस बहुत ज़्यादा 2020 में देखी एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी कंट्रोवर्शियल फॉर मी टू से दिस, लेकिन आई एग्री विद मोस्ट ऑफ व्हाट ही इज सेइंग. अपार्ट फ्रॉम द रीसेंट स्क्रू अप्स दैट ही हैड, जिसके अंदर ही कमेंटेड ऑन इस्लाम एंड ही हैड अ नेगेटिव परसेप्शन ऑफ इट एंड उसने कुछ कंट्रोवर्शियल बातें की फॉर श्योर, एंड उन चीज़ों के साथ मैं नहीं एग्री करता. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, the message that he's delivering, yes, he's saying it in a way where it is polarizing audiences, but that is done in a very conscious way. And I think what he's doing, empowering young men, teaching them कि भाई आप जिम जाना स्टार्ट करें, आप ऑनलाइन पैसे कमाना स्टार्ट करें. There is absolutely no one who's coming to save you as a man. आपने ही अपनी लाइफ का कंट्रोल लेना है. तो I think people have a problem with the way he says certain things, but I do think his message is very much needed. एंड मैंने खुद बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया उसके कंटेंट से. अब ऑब्वियसली अगर आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, लेट्स इमेजिन कि मैं सैंटियागो, अभी कल रात को आर्सेनल और रियल मैड्रिड का मैच हुआ है, मैं बिग आर्सेनल फ़ैन बाय द वे, तो आर्सेनल वन, एंड अगर लेट्स से मैं इमेजिन करता हूँ कि यार सैंटियागो बर्नाब्यू, उसके अंदर कैपेसिटी 81,000 लोगों की है. मैं उस स्टेडियम के बीच में एक माइक को पकड़ के बोलता हूँ कि भाई ब्लूबेरी जैम इज़ द बेस्ट जैम इन द वर्ल्ड. Do you think all 81,000 of those people will agree with me? What if I say कि for anyone who doesn't believe blueberry jam is the best jam in the world, you're just stupid. तो उस केस में even more people will be pissed off at me. तो कहने का मकसद ये है कि you can't ever imagine कि everyone is going to agree with your world views. Your job as a creator is to polarize audiences. That is what you're here to do. अगर for example मैं या फिर कोई भी creator सारी की सारी वही बातें करता है जिसके साथ हर कोई एग्री करता है, तो कल के दिन जो है वो कोई क्रिएटर एग्जिस्ट नहीं करेगा. यू हैव टू बी टचिंग नर्व्स समटाइम्स, यू हैव टू बी सेइंग कंट्रोवर्शियल थिंग्स समटाइम्स. दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीइंग अ क्रिएटर. आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो येस, उसकी कुछ बातें जो है वो बहुत लोगों को बुरी लगती हैं, बट एज अ क्रिएटर इट इज़ योर जॉब to polarize audiences and एक specific contingent of people को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा emotionally attach करना होता है. That is your job as a creator. Doesn't that also come with a bit of responsibility? It does for sure.
It does for sure. And But do you feel like you yourself, because you've said कि आप उनकी point of view से agree करते हैं, do you think you're being responsible when you're polarizing society that is already so polarized? But do you think you're fulfilling that responsibility? देखिए 100% I do agree with you. As a creator आपकी बहुत responsibility होती है and you have to manage that responsibility correctly. But मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या आजकल के यंग मर्दों को जो है वो गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. एंड आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंटेंट आउट देयर जो लोगों को जो है वो नीचे खींच रहा है. देयर इज़ अ लॉट ऑफ आइडियलिस्टिक चीज़ें जो पुश की जा रही हैं सोसाइटी के ऊपर, विच इज़ ruining our fiber as a nation. And I think कि इस मैसेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि every man needs to get up and do something for himself. Yes, 100% बहुत उसने गलत बातें बोली हैं. There's a lot of stuff with him that I don't agree with. But for most of the message he's delivering, which is empowering young men, if you're going to ask me, am I against empowering young men? So my answer would be a straight no. So I think it isn't a problem of the message that he's delivering, but a problem of how he's delivering his message. Okay, I think this can be a longer conversation, but I'll move forward with another more controversial sort of subject, which is the Aurat March in our country. How do you see that? Is it also sort of seen in the same realm of empowerment as you are seeing Andrew Tate empowering young men? Isn't that also a march that you would say is empowering women and young women? 100% I'm all for empowering young women. And I think it is very important कि हमारी सोसाइटी की औरतें एम्पावर होती हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कुछ गलत चीज़ें भी पुश की जा रही हैं हमारे ऊपर. इफ़ यू वर टू आस्क मी कि एक औरत का जो है वो काम करना और काम करके पैसे कमाना एक एम्पावरिंग चीज़ है, तो आई वुड से 100% yes, I 100% support it. But is promoting promiscuity something which is empowering? I would say no. It goes against the morals that I have adopted as a man, and it goes against what I represent. So if that is the idea which is trying to be pushed, and that is the idea which is trying to be promoted as a proxy, so I am against that specific thing. I'm not against the Aurat March. I'm not against empowering women. मैं जो है वो एक ऐसे घराने के अंदर पैदा हुआ हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा औरतें हैं. मैं बहुत ज़्यादा औरतों की रिस्पेक्ट करता हूँ. I have a lot of sisters. एंड मैं जो है वो फील करता हूँ कि औरतों की एक बहुत फेमिनिन एनर्जी होती है जो प्रिजर्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड ट्राइंग टू गेट देम टू बी मैस्कुलिन, यू नो, एंड promoting promiscuity as a proxy as a result of these kinds of things कि भाई कम कपड़े पहना empowering चीज़ है, that is not something I'm for, respectfully. Because yes, औरतों को की empowerment, औरतों की जॉब करना, औरतों का पैसे कमाना, औरतों का confident leaders बनना, that is something I 100% support. But promoting promiscuity, promoting कि भाई औरतें कम कपड़े पहने and that is empowering, so I'm sorry, I'm not again. But why are you feeling like the march or the entire movement is trying to do that? Because Western ideologies आहिस्ता आहिस्ता हमारे कल्चर के अंदर सीप इन करती जा रही हैं, एंड आई थिंक कि वी आर अडॉप्टिंग द रॉन्ग थिंग्स. आई थिंक अच्छी चीज़ें भी हम लोग अडॉप्ट इतनी ज़्यादा नहीं कर रहे जितनी ज़्यादा हम लोग गलत चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं. आपको खुद हमारी सोसाइटी के अंदर नज़र आएगा कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हम लोग इस वक्त वेस्टर्न सोसाइटी से पिकअप कर सकते हैं जो हमारे लिए एक पॉजिटिव इफेक्ट कॉज करेंगी. फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग वेस्टर्न सोसाइटी से देख सकते हैं कि भाई वो सोशल मीडिया के मामले में हमारे से 10 साल आगे चल रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेशनल कंटेंट इज़ नाउ वेरी मच एट पीक लेवल इन वेस्टर्न सोसाइटीज़, बट यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि एंटरटेनिंग कंटेंट क्रिएटर्स आर गेटिंग द बल्क ऑफ द व्यूअरशिप. एंड आई थिंक कि हम लोग अगर अच्छी चीज़ों को पिक करें, दैट इज़ बेटर than picking up the wrong things from Western ideologies when it goes against the fiber of the country that I'm sitting in right now. Uzair, you sort of mentioned, giving people and giving men, younger men, a purpose in life. What do you think a man's purpose in today's world is? To become the best version of himself, to provide and become the best version of yourself, you have to put in effort. हम लोग कंफर्ट से इतने ज़्यादा आदी हो चुके हुए हैं कि हम लोग वी आर सो यूज्ड टू सेटिंग ऑन आवर फोन्स, पूरा दिन बेड के ऊपर लेटे रहेंगे, रील्स स्क्रॉल करते रहेंगे, एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी डैमेजिंग टू अस. हम लोग इतना ज़्यादा कंप्लेसेंट हो गए
और हम लोग एरोगेंट हो गए हैं। अगर कोई बंदा हमें कोई चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहा हो तो हम लोग उसकी बात 2 मिनट के लिए बैठ के सुन नहीं सकते, बिकॉज आवर अटेंशन स्पैन्स हैव बीन फ्राइड इन रियल टाइम, एंड आई थिंक दैट इज हैविंग अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट on young men. And I think as a man no one is coming to save you. आपने खुद ही अपना कुछ बनाना है, अगर बनाना है आपको कोई भी हैंडआउट्स नहीं ऑफर करेगा. You have to make something of yourself. Now आई एम अ सपोर्टर फॉर अर्ली मैरिज. मैं बहुत ज़्यादा कहता हूँ कि भाई लड़कों को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जल्द से जल्द उनकी मैरिज हो जाए. यू माइट बी सेइंग कि यार इस बंदे की बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशन आइडियोलॉजीज़ हैं. दैट्स कम्प्लीटली फाइन बाई मी. आई होल्ड द मॉरल्स विच हैव बीन इंस्टिल्ड इन मी बाय माई फैमिली, एंड माई फैमिली इज़ अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड एंड रिस्पेक्टेड फैमिली. एंड इसीलिए मैं बिलीव करता हूँ कि लड़कों को अर्ली मैरिज की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज सो दैट दे कैन स्टे अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ wrong things, end up making the kind of mistakes that they'll end up regretting later. अगर आपकी जल्दी शादी हो जाती है तो you'll stay away from like the likes of consuming adult content, chasing cheap dopamine and chasing like the wrong kinds of relationships which has become so prevalent in today's day and age. Casual relationships इतनी आम हो गई हैं, and I want कि young men जो है वो early marriage करें. Up to marry early they have to become a certain caliber of man first. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब आप लड़की का हाथ मांगने के लिए जाएंगे तो आपसे पहला सवाल यही पूछा जाएगा कि आपकी आमदनी कितनी है. तो अगर आपकी आमदनी अच्छी नहीं होगी तो फिर वो आपको हाथ नहीं देंगे. तो अगर आपने आमदनी अपनी अच्छी बनानी है और आपके कन्वेंशनल करियर पाथ के थ्रू आपको 30-32 साल की उम्र हो जाएगी पैसे कमाने तक, तो व्हाट ऑप्शन डू वी हैव लेफ्ट? एक्सप्लोर द ऑनलाइन वर्ल्ड. एंड ऑनलाइन वर्ल्ड इतना ज़्यादा वसी है कि आप सोचें कि वेस्ट के अंदर देयर आर 18-year-olds आउट देयर हु आर मेकिंग $20,000 पर मंथ. एंड अगर वो लड़के कर सकते हैं तो हमारे लड़के क्यों नहीं कर सकते? तो आई थिंक कि मैं चाहता हूँ कि लड़कों को एम्पावर करूँ. देखें, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम फंडामेंटल्स. इट्स नॉट लाइक आप जो इंसान की वर्जन इस वक्त है वो कल उठ के जो है वो $10-20 हज़ार कमाना शुरू कर सकता है. दैट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज आपकी हैबिट्स इस वक्त अच्छी नहीं बिल्डअप हुई हुई. आप इस वक्त आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है कि आप आधे घंटे के लिए, घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए बैठ के किसी चीज़ के ऊपर काम करें. एंड टू बिल्ड दैट अप यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम मेंटल्स, गोइंग टू द जिम, स्टॉप कंज्यूमिंग चीप डोपामीन. सही है, स्टार्ट स्मॉल. सुबह के टाइम में आधे घंटे के लिए फ़ोन कंज्यूम करना बंद कर दें, रात के टाइम में बंद कर दें. कोई एक छोटा मोटा स्टेप तो लेना. मैं अपने बारे में बहुत ज़्यादा बताता हूँ कि माई जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम द जिम. मैं जिम जाना शुरू किया एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई फिजिक. एंड व्हेन आई डिड तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि नाउ I am becoming someone who is becoming, at least entertaining the idea of delayed gratification. एंड जब आप वो करना शुरू करते हैं आपका ऐसा डिसिप्लिन बिल्डअप होना शुरू होता है. एंड जिम से मुझे लगता है एक जनरली आपकी लाइफ के अंदर अपवर्ड स्पायरल होना शुरू हो जाता है. एंड आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यंग मैन दीज डेज टू स्टे अवे फ्रॉम दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स, बिल्ड देमसेल्व्स अप. कोई ना कोई साइड हसल स्टार्ट करें, उस साइड हसल के थ्रू फाइनेंशियल फ्रीडम गेन करें सो दैट दे कैन मैरी अर्ली एंड एज सून एज पॉसिबल. नाउ आई एम नॉट सेइंग कि आप कंप्लीटली अपने कन्वेंशनल एजुकेशन को छोड़ दें, स्कूल जाना बंद कर दें या यूनिवर्सिटी जाना बंद कर दें या जॉब ना चेस करें. आई एम नॉट सेइंग दैट, बट हैविंग दिस आइडियोलॉजी कि मेरे पास टाइम नहीं है कोई साइड हसल बिल्ड करने की इज़ कम्प्लीटली द रॉन्ग आइडियोलॉजी. इफ़ आई कुड बिल्ड प्रॉफिटेबल एंड मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स ड्यूरिंग माई MBBS, आई एम अ डॉक्टर, मैं अगर अपने MBBS के थ्रू बिल्ड कर सकता था, एंड मेरे से ज़्यादा कौन बंदा बोल सकता था कि मेरे पास टाइम नहीं है, बिकॉज आई हैड द बेस्ट एक्सक्यूज इन द वर्ल्ड. एवरीवन वुड बिलीव मी कि भाई हाँ डॉक्टर्स के पास तो टाइम ही नहीं होता. यस, तो आई डिडंट एवर यूज़ दैट एक्सक्यूज, क्योंकि मुझे पता है कि यार इट्स नॉट कि मेरे पास एक्चुअली टाइम नहीं है, इट्स जस्ट कि आई एम टेलिंग माई सेल्फ कि मेरे पास टाइम नहीं है. तो अगर आप अपनी कन्वेंशनल एजुकेशन के साथ साथ कोई ना कोई साइड हसल बिल्डअप करते हैं, आप अपनी जॉब के साथ कोई ना कोई साइड हसल बिल्डअप करते हैं, यू विल एटलीस्ट गेन फाइनेंशियल फ्रीडम टू मैरी अर्ली. आप साथ साथ अपना करियर चलाते रहें, या हो सकता है कि आप करियर चलाते वक्त अपनी साइड हसल के थ्रू इतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल इनकम स्ट्रीम बिल्ड कर लें कि यूर लाइक कि अच्छा चलो सही है, आई डोंट रियली नीड टू चेस माई कन्वेंशनल करियर एनी मोर. Maybe at the end of the day when you start making money from your side hustle, so you realize that you weren't going through that conventional career paths just for the sake of your love for that specific career path. For example, एक बंदा लॉयर बन रहा है, तो अगर वो अपनी साइड हसल के थ्रू पैसे कमाना शुरू कर देता है, at one point maybe he'll realize कि भाई लॉ मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं था. I wasn't really that into law. I was just in love with the financial freedom that law promised me. So maybe when you get that financial freedom, you're like, अच्छा चलो ठीक है. Now law is something which is sort of a passion project for me, and it is something which I do because I enjoy, and not because I want to earn a revenue through it. So I think it is going to be very empowering for young men to
डिस्कवर साइड हसल्स कितनी ज़्यादा आजकल मौजूद हैं. देयर आर सो मैनी मॉडर्न वेल्थ क्रिएशन मेथड्स आउट देयर राइट नाउ. Like if you were to name like the top 3 side hustles that anyone can easily do. Yeah, in my personal opinion, I think I won't even name top 3 of them. I would name the number 1 side hustle that every person should start. And I'm not specifically speaking for men. मर्द स्टार्ट कर सकते हैं, औरतें स्टार्ट कर सकती हैं अपने स्पेसिफिक तरीक़ों से. यू शुड स्टार्ट अ पर्सनल ब्रांड. पर्सनल ब्रांड इज़ योर बेसिक फेस वैल्यू एंड योर स्टैंडिंग इन द मार्केट. एट द एंड ऑफ द डे आजकल का टाइम वी लिव इन एन अटेंशन इकोनॉमी. जिस बंदे के पास अटेंशन है वो अपनी प्रोडक्ट्स, अपनी डिजिटल प्रोडक्ट्स, कोई भी चीज़ सेल कर सकता है. यू कैन अर्न मनी थ्रू दैट. एंड अगर आपके पास एक पर्सनल ब्रांड एग्जिस्ट करता है तो पीपल हैव आई बॉल्स ऑन यू. नाउ ब्रांड्स वांट आई बॉल्स. यू हैव द एबिलिटी एज अ पर्सनल ब्रांड. लेट्स से आपके पास 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो अगर आपके पास 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, यू कुड लॉन्च एन ई कॉमर्स ब्रांड विच इज़ रेलिवेंट टू योर पर्सनल ब्रांड एंड सेल आउट ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक. हो सकता है कि आई मेक कॉन्टेंट अबाउट लेट्स से सनग्लासेस या फिर फैशन, और मैं फैशन के बारे में कंटेंट बना रहा हूँ और एक दिन आई डिसाइड कि भाई मैं एक सनग्लासेस की लाइन लॉन्च कर रहा हूँ. इफ़ आई हैव 1 मिलियन फॉलोअर्स तो आई हैव द एबिलिटी टू सेल आउट विद इन द फर्स्ट वीक. You have a market already. Yes. Yeah. अब अगर एक कन्वेंशनल बिजनेस होता तो दे विल हैव टू स्पेंड मनी आउट ऑफ देयर ओन पॉकेट इन ऑर्डर टू पुट देयर प्रोडक्ट इन फ्रंट ऑफ द जनरल पब्लिक. बट अ पर्सनल ब्रांड, समवन हु हैज़ अ कॉम्पिटेंट एंड इंटेंशनल पर्सनल ब्रांड, उसको इस चीज़ की हाँ ज़रूरत होगी पेड एडवर्ट्स की भी, बट उतनी ज़्यादा नहीं होगी. ही विल डिपेंड मोर on his backbone, which is his personal brand. आप Crumble को देख लें. You see the beautiful things that Crumble has done in the past year. कि इतनी ज़्यादा branches उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर open up कर लिया, and it is all through organic marketing. It's not. आपने कभी आज तक देखा है कि खबरनामे के अंदर जो है वो Crumble का ऐड आया हो कि भाई नया हेजलनट कुकी लॉन्च हुआ है? नो, आना चाहिए वैसे पाकिस्तान ऑब्जर्वर के अंदर. पाकिस्तान ऑब्जर्वर के अंदर ज़रूर आना चाहिए. So Uzair, you developed your personal brand, and I think it goes by the name Uzair JK. Yes. What's up with the JK? I knew that question was coming, but there's no specific thing which is associated with JK. But J मेरे माइंड में जो था वो ये था कि Uzair 23 मेरा बेसिकली पहले हैंडल था. तो आई वॉज लाइक कि यार ये 23 साथ लगा हुआ अच्छा नहीं लग रहा, कोई ना कोई ब्रांड नेम होना चाहिए. तो मैंने जस्ट डिसाइड किया कि यार आई जस्ट ऐड JK एट द एंड ऑफ इट. जे इस वजह से आ रहा था बिकॉज मैं अपनी वीडियोस के अंदर जेगर बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, एंड के इस वजह से बिकॉज के इज़ माई सर नेम, यानी कि मेरे वालिद साहब का नाम खिज़र है. तो इस वजह से मैंने बस JK लगा दिया बिकॉज इट वॉज मेकिंग सेंस एंड लुक नाइस इन द मोमेंट. अब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू मीन फ्रॉम दैट JK. Jigger Khizr. Jigger Khizr. But so when did this Uzair JK journey start, like your content creation which is now your brand? आपने कैसे सोचा and when did it start? When did Uzair become Uzair JK? So basically my content creation journey started back in before this Ramzan, यानी कि back in 2024 के रमज़ान में स्टार्ट हुआ था. एंड उसमें इस तरह हुआ कि आई बेसिकली स्टार्टेड पोस्टिंग कंटेंट ऑनलाइन अबाउट माई जिम जर्नी. एंड मैं जब भी जिम जाता था तो आई वुड रिकॉर्ड सम ऑफ माई वीडियोज़, ऐड सम नाइस म्यूजिक एट द बैक ऑफ इट एंड थोड़े से एडिट्स वगैरह लगा देता था. बट आई डिड वॉट मोस्ट क्रिएटर्स डोंट डू. आई एनालाइज माई कॉन्टेंट. So I basically had this in the back of my head कि I'll just record videos for 30 days and वो 30 days की videos जो है वो मैं चला दूँगा, यानी कि अपलोड कर दूँगा. एंड आफ्टर दोज 30 days या तो मेरी कोई ना कोई वीडियो चलना शुरू हो जाएगी, वायरल हो जाएगी, या फिर मुझे पता चल जाएगा कि भाई माई कॉन्टेंट इज़ंट वर्किंग, कि भाई अगर मुझे ऑब्वियसली व्यूज़ नहीं आ रही. तो आफ्टर 30 days आई रियलाइज़ कि यार मुझे बहुत ज़्यादा नए फॉलोअर्स भी नहीं आए, बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा मेरी इंगेजमेंट भी नहीं है, तो व्हाट कैन आई डू. अब आई रियलाइज़ कि यार मैं जब बहुत अर्ली एज में था, 14-15 साल की उम्र में था, मैं 15 साल की उम्र में गाड़ी सिखा दी गई, बहुत पुरानी सी गाड़ी के ऊपर. और 15 साल की उम्र में मेरे वालिद साहब अगर कोई गाड़ी का काम भी होता तो कहते थे कि जाओ खुद ही करो, मकैनिकों के अंदर खुद ही खज्जल हो ना. तो इस तरह मेरे अबू ने ये चीज़ बहुत अच्छी की कि मुझे एक बहुत अर्ली एज में बाहर दुनिया में एक्सपोजर दे दिया. इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा लेसन्स लर्न किए. मैंने अपने स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज के टाइम में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर लिया. आई कॉन्स्टेंटली वो put myself outside of my comfort zone, and उसकी वजह से I learned a lot of lessons and I realized कि यार मेरी younger version used to face a lot of problems, so maybe I should start making content where I'm genuinely trying to help those young men and the problems that I faced when I was younger, and मैं उन चीज़ों को address करने की कोशिश कर रहा हूँ.
तो उसके अंदर फिर आई स्टार्टेड मेकिंग कंटेंट अराउंड पर्सनल डेवलपमेंट एंड माय सेकंड वीडियो ended up going viral, and उसके बाद फिर I just doubled down on that and kept going, and माशाल्लाह एक साल के अंदर I was able to surpass a following of 300,000 followers on Instagram, and within 2 months माशाल्लाह I've also surpassed 27,000 subscribers on my YouTube channel as well. तो that was my content creation journey. But apart from that, अगर आप मेरी online world के अंदर journey के बारे में बात करें तो I've been a part of this space for the past good 2 or 3 years. बहुत ज़्यादा वेंचर्स मैंने किए, बहुत ज़्यादा वेंचर्स फेल भी किए, बहुत ज़्यादा वेंचर्स सक्सेसफुल भी हुए, बट आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस स्पेस फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम. कंटेंट क्रिएशन पिछले 1 साल से चल रही है. And so was it like the normal trajectory जहाँ पे आपका एक private account था and you made it public? Is that how you started? Yes, so basically जब मैंने स्टार्ट करना था तो आई थॉट कि यार मे बी आई शुड मेक अनदर पेज ना. बट देन मैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रीच भी करता हूँ अपने फॉलोअर्स को और अपने स्टूडेंट्स को भी कि भाई अगर आपने एक पर्सनल ब्रांड बिल्डअप करना है तो आपने अपना जो मेन अकाउंट है उसी के थ्रू पोस्ट करना स्टार्ट करना है. येस, उसके थ्रू ये होगा कि आपकी खाला जी भी बोलेंगी कि भाई बेटा आप क्या कंटेंट बना रहे हो, आप तो बड़ी वीडियोस लगा रहे हो, तो आपका व्लॉग मैंने देखा था. बट अगर आप अपने मेन अकाउंट के थ्रू पोस्ट करना शुरू करेंगे तो यू विल स्टिल हैव दैट इनिशियल पुश फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग फॉलोअर्स. लेट्स से आपके पास 600 फॉलोअर्स हैं तो एटलीस्ट 300-400 व्यूज़ तो आपकी आ जाएंगी इनिशियल वीडियो के अंदर. एंड अगर इनिशियल वीडियो के अंदर कोई ना कोई व्यूज़ आ रही हैं तो इट इज़ गोइंग टू बी अर्लियर कि आप जो है वो किसी ना किसी तरीके से इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम के अंदर पॉपअप कर जाएंगे. बट इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, फ्रॉम एन अकाउंट जिसके ऊपर कोई भी फॉलोअर्स नहीं एग्जिस्ट करते, तो अगर आप वहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको वही अमाउंट ऑफ व्यूज़ जो आपको एग्जिस्टिंग अकाउंट के थ्रू मिलते 300-400 व्यूज़, उसी पॉइंट तक जाने में हो सकता है 10-15 वीडियोज़ लग जाएँ. तो वाई नॉट स्टार्ट फ्रॉम योर मेन अकाउंट. But then how did you get over that लोग क्या कहेंगे sort of खाला जी क्या कहेंगी mindset? देखिए मैं इस चीज़ में बहुत बड़ा फर्म बिलीवर हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे आपको कभी भी कोई ऐसा बंदा नहीं कोसता जो आपसे ऊपर होता है. हमेशा आपसे नीचे वाले कोशिश करते हैं कि आपको अपने पास ही रखें. देयर इज़ अ स्क्रैब्स इन अ बकेट वाली आइडियोलॉजी और फिलॉसफी जो हमारी नेशन के अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद है कि भाई अगर कोई बंदा उठ रहा है तो उसे कभी भी उठने ना, तो उसे खींच के नीचे ले आओ. एंड नो वन इज़ हैप्पी इन समवन एल्सेस सक्सेस. तो मुझे ये बात पता थी कि जो भी बंदा मेरे से ऊपर है वो खामोश बैठा हुआ है या मुझे इनकरेज कर रहा है, और जो भी बंदा मेरे से नीचे है वो मुझे कोसेगा, और मैं उस बंदे जैसा नहीं बनना चाहता. तो वाई शुड आई लिसन टू हिम. लेकिन यू हैव टू रियलाइज कि ऑन द इंटरनेट देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल गिविंग आउट एडवाइस, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल स्पीकिंग. यू शुड ऑलवेज लिसन टू द पर्सन हु हैज़ डन व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू. मैं क्यों ऐसे बंदे के बारे में या उसके कोसने को या उसके तानों को सुनूं जिस बंदे ने वो नहीं किया हुआ जो मैं करना चाह रहा हूँ. बिकॉज इफ़ आई वॉन्ट टू बी अ सर्टन कैलिबर ऑफ मैन, आई लिसन टू द पीपल जिन्होंने वो वाली एवेन्यूज़ रीच की हुई हैं जो मैं रीच करना चाह रहा हूँ. जो मेरे से नीचे वाले दे डोंट रियली मैटर टू मी, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस फ्रॉम अ प्लेस ऑफ के भाई आई एम बिगर देन देम, नॉट एट ऑल. आई डू बिलीव कि आई एम समवन के जो सारा एक नॉर्मी था, सही है, एंड मैंने बस अपने ऊपर एफर्ट बहुत ज़्यादा किया है. एंड एवरी वन कैन डू दैट. इफ़ आई कैन तो एवरी वन कैन. बट आई एम सेइंग इट फ्रॉम अ प्लेस ऑफ कि भाई मैं रिस्पेक्टफुली सिर्फ और सिर्फ उसी बंदे को सुनूंगा और उस बंदे की बात को गौर से सुनूंगा और उस बंदे के तानों को सीरियसली भी लूँगा जो मेरे से ऊपर है. अगर कोई ऐसा बंदा मुझे बोलता है कि भाई यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, तो आई रिस्पेक्टफुली लिसन टू दैम. आई एम अ वेरी गुड लिसनर. आई एम नॉट एज गुड ऑफ अ टॉकर एज गुड ऑफ अ लिसनर एज आई एम. तो मैं जो है वो ये चीज़ बहुत समझता हूँ कि जो बंदा आपसे ऊपर है उस बंदे की आपको 100% बात सुननी चाहिए. बट जो आपसे नीचे हैं मतलब if they're not doing what you're trying to do, so why listen to them? But is there, this does require like a certain level of self-confidence and being self-assured. Have you always been this way, or is there sort of a means that you went through and you became more self-confident? And if you did, so what is like some advice that you have for other people? Like you have to realize that self-confidence basically is determined by one metric only, and that is competence. जो बंदा कॉम्पिटेंट है वो ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट है और वो बंदा ज़्यादा सेल्फ अश्योर्ड है. अगर आप एक कॉम्पिटेंट आदमी नहीं होंगे तो ऑब्वियसली आप अपने आप के अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं समझेंगे. तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट गो इनटू दिस. देयर इज़ बेसिकली कि भाई डू यू फुलफिल द प्रोमिसेस दैट यू मेक टू योरसेल्फ एवरी सिंगल डे. अगर मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि मैं 8 बजे जिम जाऊँगा लेकिन मैं 8 बजे जिम नहीं जाता, तो मेरा सेल्फ बिलीफ इन माई सेल्फ एज अ पर्सन एंड माई रिस्पेक्ट इन माई ओन आइज ड्रॉप कर जाती है थोड़ी थोड़ी. बट अगर इफ़ आई फुलफिल द प्रोमिसेस दैट आई मेक टू माई सेल्फ एवरी सिंगल डे, इफ़ आई एम कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन माई सेल्फ एंड उसके थ्रू जो है वो मुझे कॉन्स्टेंटली नज़र आ रहा है कि भाई मैं एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी के ऊपर जा रहा हूँ,
उसकी वजह से जो है वो आप आहिस्ता आहिस्ता सेल्फ अश्योर्ड और सेल्फ कॉन्फिडेंट बनना शुरू हो जाते हो. बट द नंबर वन थिंग, if I had to center it down to one specific thing, so I would say कि fulfill the promises that you make to yourself every single day. That is the foundation of your self-confidence and self-belief. And as for your question, was I always this way? Not at all. I used to be someone who was overweight, lazy, didn't do anything with his time. I was just a normal student. मैं अपने MBBS के दौरान जो है वो मैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा बताता हूँ in my videos as well कि I was just living in a constant rut कि जहाँ पे मैं रात को 3 बजे सोता था, 12 बजे से लेके 3 बजे तक रील स्क्रॉल की, 3 बजे जाके सो गया, सुबह 6 बजे यूनिवर्सिटी के लिए उठना पड़ गया, फिर यूनिवर्सिटी चले गए, यूनिवर्सिटी से वापस आए, आके सो गए क्योंकि थके हुए इतने ज़्यादा हैं, और फिर थकावट की वजह से सोने के बाद उठने के बाद बस जिम जाने का ही टाइम रह जाता था और तो कोई रहता नहीं था. तो मुझे भी ऐसा लगता था इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर कि मेरे पास टाइम नहीं है. बट फ्रॉम अ थर्ड पर्सन परस्पेक्टिव अगर आप आके देखें तो आपको नज़र आएगा कि इस बंदे के पास टाइम तो बहुत है, बट ही इज़ जस्ट एलोकेटिंग दैट टाइम ऑन द रॉन्ग थिंग्स. तो what men have to do as well is analyze their own life as if they're looking from a third person's perspective and ask yourself as a man, do you think you don't have time, or are you just hiding behind that excuse and are you just telling yourself you don't have time? Because mostly it is the latter. Right. And is there, like, for example, मैं जब, you know, when I'm not working or when I don't have a busy schedule, I feel my lowest. I don't have good days and I don't feel happy. जब मेरे days बहुत busy चल रहे होते हैं, I'm always craving for that day, you know, where I would just sit back, relax. But when I actually get that day, I'm like, okay, I want to get back to work, or I want to get back to like grinding my gears, basically. Do you feel like feeling low, feeling depressed, feeling anxious also has something to do with not having something to look forward to? Do you think that plays a role? 100%. I think कि और ये आपकी लाइव एग्जांपल है, एज यू टोल्ड मी कि यू फील योर हैप्पीएस्ट व्हेन यू आर एक्चुअली चेसिंग टुवर्ड्स समथिंग, एंड दैट इज़ द केस फॉर एवरी मैन. अगर आप अपनी लाइफ के अंदर एक पर्पस की तरफ वर्क कर रहे हैं, एंड द रीज़न आई से एज अ मैन एंड एज अ मैन एंड एज अ मैन इज़ बिकॉज मैं स्पेसिफिकली आई स्पीक टू यंग मैन, because I can only help with the situations that I've personally been through. I don't know what a girl goes through. I know what a man goes through, what a young man goes through. And इसी वजह से मैं as a man बोलता हूँ and I advise young men. तो back to my topic कि भाई do you, as you said कि भाई you feel you're happiest when you're working towards a purpose. And इसी तरीके से कि अगर आप constantly किसी चीज़ के ऊपर work कर रहे हैं तो आप एक momentum में चल रहे होते हैं and आपको पता होता है कि भाई you don't really have the time or you don't really have the mental energy to feel depressed or sad. And I think कि mostly जो है वो हमारे mental problems would be solved कि if we were actively working towards something. I think कि doing nothing and, you know, being stuck in ruts is the biggest problem when it comes to mental health. And I think कि mental health एक मर्द के लिए बहुत ज़्यादा important है. I think it isn't talked about as much. And I think कि for you to be in your best mental state, speaking from personal experience, तो दैट वुड बी कि व्हेन आई एम एक्टिवली वर्किंग टुवर्ड्स समथिंग. अगर मैं अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली यू नो सैड फीलिंग्स एंड नॉट फीलिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, दोज थिंग्स विल स्टार्ट टू कैच इन. Right. And I mean, you know, if someone's going through that sort of state where they're not feeling their best, they're not feeling their happiest, what's your advice to them? Like, should they just get up and start running? Should they just go to the gym? क्या कर सकता है बंदा when one's feeling that way? देखिए, एनालाइज योर सेल्फ कि भाई वाई एम आई फीलिंग दिस वे, क्या वजह है इसके पीछे. बिकॉज मोस्टली जो है ना, जब आप कोई भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम गो थ्रू कर रहे होते हैं तो इट इज़ आपको सिम्टम से ज़्यादा कॉज के ऊपर स्टडी करना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज कॉजिंग दिस. बिकॉज हो सकता है कि कोई ना कोई पीछे ऑन द बैक एंड कोई ना कोई कॉज हो विच इज़ कॉजिंग यू दिस काइंड्स ऑफ मेंटल डिस्ट्रेस. तो फर्स्ट इज़ एनालिसिस कि भाई आस्क योर सेल्फ कि वाई एम आई गोइंग थ्रू व्हाट आई एम गोइंग थ्रू. सेकेंड इज़ कि कोई ना कोई आपकी इनएडिक्वेसी आपको अपनी लाइफ के अंदर नजर आएगी. Maybe you're not financially capable enough. Maybe you're not working towards something which is going to make you financially capable enough. Maybe you're just stuck in a rut. Maybe you're just feeling low because of family problems. There might be a lot of things. So फिर जो है वो you just have to ask yourself कि what is the solution to this problem? After analyzing yourself कि what is the solution to this problem? Now when you ask yourself कि what is the solution to this problem, आपके सामने जो है वो 50 चीज़ें आ जाएंगी कि भाई ये solutions हैं इस problem के. No. Cut all of that out. Ask yourself कि आज मैं क्या ऐसी चीज़ कर सकता हूँ which can get me 1% closer to my goal. Not 50%, not 100%, just 1% closer. अगर आप उस specific goal की तरफ
एक एक कदम करके चलते रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम भी वाज़ेह होता रहेगा. अगर आप इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि भाई 100वें कदम पे मैं किस प्रॉब्लम को फेस करूँगा, तो you'll never end up taking that first step. And I think the first step is what matters most. So, Uzair, of course, these things are much easier said than done. I mean, if, you know, when you're going through a state like that, there's, you know, you don't even know what you're feeling. But have you been at a point in your life where you felt like you were at your absolute rock bottom, and then did you sort of do all of this stuff to get out of it? 100% yes. And when I was at rock bottom, तो उस टाइम में मुझे इसी तरह लग रहा था कि there is no way out from for me. मतलब इस specific phase में से मैं कभी भी बाहर नहीं निकल सकूँगा. But the beautiful thing about time is कि it can change absolutely anything in the world. तो विद टाइम जो है वो चीज़ें सामने मुझे वाज़ेह होने लग गई. एंड आई थिंक कि माई स्पिरिचुअल कनेक्शन ऑल्सो मैटर्स अ लॉट इन दिस. आई थिंक कि अगर आप अल्लाह से करीब हैं, अगर आप कॉन्स्टेंटली जो है वो अपने स्पिरिचुअलिटी के ऊपर वर्क करते हैं एंड यू आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू फाइंड द आंसर्स, एंड आप कॉन्स्टेंटली अल्लाह को दिखा रहे हैं कि यू आर पुटिंग इन द एफर्ट एंड ट्राइंग टू फाइंड समथिंग विच कैन गेट यू क्लोजर टू योर पर्पस, तो इवेंचुअली अल्लाह आपको रिवॉर्ड करेंगे ही करेंगे. मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई बंदा मेहनत करता रहे लेकिन उसे कभी भी ज़िंदगी में फल ना मिले. तो एट द एंड ऑफ द डे देखें, व्हेन यू आर एट योर रॉक बॉटम, तो आपको एफर्ट करते हुए भी आपकी हट रही होती है कि यार मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकता. बट जस्ट आस्क योरसेल्फ कि क्या छोटा स्टेप मैं ले सकता हूँ. मे बी इट्स जस्ट गेटिंग अप एंड क्लीनिंग अप योर रूम. आई थिंक दैट वाज रियली ट्रांसफॉर्मेटिव फॉर मी एज वेल. मैंने आपको इस पॉडकास्ट से पहले बताया कि आई लाइक टू स्टे क्लीन ऑल द टाइम. मैं प्रेफर करता हूँ कि मेरा रूम, मेरी स्पेस, मेरा वजूद, मेरे कपड़े, सब कुछ क्लीन हो. एंड अगर एक बंदा जो इस तरह की मेंटल डिस्ट्रेस के अंदर मौजूद है सिर्फ एक स्टेप भी कर लेता है, आई एम नॉट सेइंग इट इज़ गोइंग टू कम्प्लीटली चेंज हिज लाइफ, बट आई थिंक इट विल गेट हिम वन स्टेप क्लोजर. जस्ट गेट अप, look at your room and see कि मतलब what is this state telling me right now. Because mostly अगर आपकी स्पेस बहुत ज़्यादा क्लटर्ड है, अगर आपकी स्पेस के अंदर बहुत ज़्यादा धोने वाले कपड़े पड़े हुए हैं, आपके कमरे के अंदर सोने वाली जगह पे धोने वाले कपड़े पड़े हुए हैं, और टेबल के ऊपर जो है वो कल के खाए हुए खाना पड़ा हुआ है और केचप मेल्ट हो रही है, तो ऑब्वियसली इन चीज़ों की प्रेजेंस के अंदर आप मतलब बुरा ही फील करेंगे. तो इस वजह से जस्ट टेक दैट फर्स्ट स्टेप, जस्ट टेक दैट प्लेट आउटसाइड ऑफ योर रूम, पुट इट इन द सिंक. वो कपड़े उठा के लॉन्ड्री बास्केट के अंदर रख दें, थोड़ा सा अपने रूम को टाइडी अप कर देंगे. हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 100% जो है वो अपनी सिचुएशन को सॉल्व कर देंगे. आई एम नॉट सेइंग दैट, बट इट विल गेट यू वन स्टेप क्लोजर, एंड दैट इज़ प्रायोरिटी नंबर A फॉर दैट पर्सन राइट नाउ. And I feel like, you know, you need to start helping yourself before someone can help you. But again, like, you know, external help becomes very important when you're in a mentally disturbed state. Do you personally believe that therapy is a way to go, or do you sort of say that nahi, therapy is just like, you know, a fluff and you don't really believe in it? देखिए, आई कैन ओनली से पॉजिटिव और नेगेटिव थिंग्स अबाउट थिंग्स दैट आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड. मैंने कभी थेरेपी एक्सपीरियंस नहीं की, अल्लाह मुझे बचा के ही रखे थेरेपी एक्सपीरियंस करने से. एंड इफ़ आई वर टू बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट, इफ़ आई वर गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दिस, तो दैट वुडंट बी द आंसर दैट आई वुड ट्राई टू टेक स्टेप्स टूवर्ड्स. आई थिंक कि मैं जो है वो ये फोकस करूँगा इस चीज़ पे कि भाई ये एक सिम्टम है, आई एम फीलिंग सैड, व्हाट इज़ द कॉज बिहाइंड दिस सिम्टम, व्हाट कैन आई डू टू एड्रेस दिस कॉज. आई थिंक कि मैं पर्सनली नहीं फोकस करूँगा इस चीज़ पे कि मैं जाके किसी प्रोफेशनल थेरेपिस्ट से जाके पूछूँ कि भाई मेरे जो प्रॉब्लम्स जिनके थ्रू मैं गो थ्रू कर रहा हूँ, मैं क्यों गो थ्रू कर रहा हूँ. आई वुड जस्ट प्रेफर कि मैं किसी फ्रेंड के साथ रुजू कर लूँ, मैं उसके साथ एक डीप कॉन्वर्सेशन कर लूँ. एंड बाय द वे आई डू दैट ऑल द टाइम. आई थिंक इट इज़ वेरी हेल्दी फॉर यू टू गो एंड टॉक टू वन ऑफ योर मेल फ्रेंड्स एंड बी लाइक कि यार जिगर बस ये कुछ मसले चल रहे हैं यार ज़िंदगी में, क्या चल रहा है जानी बता. एंड आई थिंक कि मोस्ट गाइज हैव दैट सपोर्ट सिस्टम इन देयर लाइव्स. एंड आई थिंक कि अगर आप अपने किसी दोस्त के पास जाते हैं और उसे बोलते हैं कि भाई ये मेरे मसले चल रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक आई कैन डू, इवन अगर वो आपको सही सोल्यूशन नहीं भी बताता, जस्ट हिम बीइंग देयर एंड सपोर्टिंग यू इन दैट टफ फेज कैन बी इनफ फॉर यू. So, Zair, speaking of friends, how important do you think is a good network in your life? And I'm speaking both personally, professionally. Do you feel like it makes a difference? Yeah, is it just your capability that speaks for itself, and a network doesn't really matter? Oh, I 100% believe कि आपका नेटवर्क बहुत ज़्यादा मैटर करता है. आई थिंक कि यू कैन गेट इन टू रूम्स के जिनके अंदर आपके पास एक्सेस ही नहीं थी बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ पीपल दैट यू नो.
अगर इफ़ यू नो द राइट पीपल तो यू कैन गेट इन टू द राइट रूम्स. और दूसरी बात ये है कि when you have a strong network of brothers around you, I'm speaking again from a man's perspective because मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ कि when I have a strong network of brothers around me and मैं जो है वो कोई भी काम कर रहा हूँ and हम लोग सारे मिल के वो काम कर रहे हैं तो हम लोग ज़्यादा पावरफुल महसूस करते हैं. हमारी एनर्जीज कंबाइन हो जाती हैं. हमारे कोई भी मसले होते हैं तो वो मसले उतने बड़े नहीं लगते. आई थिंक ए स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इवन इफ़ इट्स नॉट इवन फ्रेंड्स के. मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल जाते हैं किसी नेटवर्किंग इवेंट्स के अंदर जाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस के अंदर जाते हैं और जाके यू नो मीट अप विद द राइट पीपल, आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सोशलाइज एंड पुट योरसेल्फ थ्रू दैट एक्सपोजर because I think that exposure is very important for you. Absolutely. What are like some of the top healthy habits that you have personally incorporated in your life to become the version of you that you are today? So I know, I suppose one of them would be working out and going to the gym because we've spoken about it so much. But other than that, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप you do on a regular basis? अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि नमाज़ पढ़ना आई थिंक कि वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड आई थिंक कि हर बंदे को यही चाहिए कि अपना दिन जो है वो नमाज़ों के इर्द गिर्द बिल्ड करे. आई थिंक कि अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं एंड आप कॉन्स्टेंटली जो है वो अपने दिन में से टाइम निकाल रहे हैं 5-10 मिनट्स, कितना सारा टाइम लग जाता है एक नमाज़ पढ़ने में. इफ़ यू आर कॉन्स्टेंटली सेटिंग टाइम असाइड फॉर दैट, फॉर यू नो थैंकिंग योर लॉर्ड फॉर एवरीथिंग दैट ही इज़ गिवन यू, एंड आप 5 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट करते हैं फ्रॉम द वर्ल्ड जस्ट टू यू नो prostrate in front of him. तो आई थिंक कि दैट इज़ वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव. एक तो वो चीज़ है. एंड दूसरी व्हाट आई वुड से इज़ मेडिटेशन इन द मॉर्निंग. आई थिंक कि दैट इज़ बिन वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव फॉर मी एज़ वेल बिकॉज आजकल के टाइम में क्योंकि इतना ज़्यादा सोशल मीडिया का दौर चल रहा है तो इस वजह से इट इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर यू टू जस्ट वेक अप एंड चेक योर फ़ोन. एंड आई थिंक उस टाइम पे आपका दिमाग एक बड़े मैलिएबल स्टेट के अंदर है. एंड अगर उस टाइम पे आप अपना फ़ोन चेक कर रहे हैं एंड आपके फ़ोन के अंदर कॉन्स्टेंट 5-6 किस्म के स्ट्रेसर्स मौजूद हैं कि एक बंदे का मैसेज आया हुआ है फॉर एग्जांपल लाइक इफ़ यू आर अ बिजनेस ओनर तो आप अगर अपना फ़ोन उठाएंगे तो देयर इज़ गोइंग टू बी 5-6 प्रॉब्लम्स विच प्रॉब्ली डेवलप ड्यूरिंग द नाइट जो सुबह आपके लिए वेट कर रही होंगी फॉर यू टू सॉल्व दैम. तो आई प्रेफर कि आई टेक द फर्स्ट 10-15 मिनट्स टू माई सेल्फ इन द मॉर्निंग. आई डोंट चेक माई फ़ोन. So you're not picking up your phone immediately? Not at all. Really? Not at all. Wow. तो मैं प्रेफर करता हूँ कि ड्यूरिंग द फर्स्ट 10-15 मिनट्स ऑफ माई डे आई गो आउट, गेट सम मॉर्निंग सनलाइट. इवन अगर कोई ऐसा दिन है जहाँ पे ग्लूमी है बहुत ज़्यादा, इट्स वेरी क्लाउडी, इवन इन दैट टाइम आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रेटनाज एंड फॉर योर ब्रेन कि आप उस टाइम पे मॉर्निंग सनलाइट लें इंस्टेड ऑफ टेकिंग इन दैट ब्लू लाइट. आई थिंक कि फ्रॉम अ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम अ स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, फ्रॉम अ मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप बाहर जाके जस्ट सेट डाउन इन नेचर, वहाँ पे बैठ के ज़रा 5-10 मिनट के लिए बस डिसकनेक्ट कर दें दुनिया से, आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव फॉर एवरीवन. एंड आई थिंक कि ये उठते साथ फ़ोन चेक करना इज़ अ वेरी डैमेजिंग हैबिट एंड आई वुड नेवर डू दैट. तो दोज आर द थिंग्स के मतलब जो मैं कहूँगा कि यार मेरे लिए बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव हुई हैं. So namaz regularly पढ़ना and a sort of morning meditation, you'd say. Yes. How do you sort of slow down? You know, do you have ways कि जब आप, so for example, for me, slowing down happens when I read a book. Like my brain just sort of slows down, you know, because like we're scrolling so much, we're reading so much. But when I just read a book for myself that has nothing to do with my work, no research, nothing, my brain sort of slows down. Do you have something like that just helps you slow down in this fast-paced world? डेफिनेटली. मे बी आई एम एन एविड रीडर एज वेल. मैं बहुत ज़्यादा बिजनेस बुक्स पढ़ना पसंद करता हूँ, बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी के ऊपर रीड करना पसंद करता हूँ. तो इट इज़ अ वेरी बिग पार्ट ऑफ माई हैबिट एंड अ पार्ट ऑफ माई नाइट टाइम रूटीन. मतलब मैं रोज़ जब भी घर जाता हूँ तो मैं सोने से पहले आई रीड एटलीस्ट 10-20 पेजेस ऑफ द बुक दैट आई एम करंटली रीडिंग राइट नाउ. तो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. एक तो वो चीज़ है. एंड दूसरा ये कि मेरा स्केड्यूल थोड़ा सा डिफरेंट चलता है. लाइक मैं इस तरह करता हूँ कि for a few months of my time I'm like really hyper focused on work. Like for 3 months I'll just be focusing on work and work only. And uske andar yes I will be you know socializing a little bit, मतलब थोड़ा सा अपना टाइम को enjoy भी कर रहूँगा apart from just working on my business. But उस टाइम पे the macro focus and 80% of my efforts are going into work. But every few months मैं एक ऐसा टाइम लेता हूँ फॉर 2-3 वीक्स के जहाँ पे आई जस्ट डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड. आई ट्राई टू गो ट्रैवल समवेयर, जाके कोई मतलब घूम फिर आया, एनीथिंग अक्रॉस पाकिस्तान. अभी रिसेंटली उम्रा करके आया.
तो इसी तरह ना मतलब कोई ना कोई मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ जहाँ पे आई एम लाइक अच्छा चलो ठीक है अब काफ़ी ज़्यादा काम हो गया, लेट्स जस्ट प्लान अ ट्रिप इवन इफ इट्स जस्ट टू लाहौर. बट मैं कहूँगा कि यार मतलब डिस्कनेक्ट करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू जस्ट ट्रैवल फॉर अ फ्यू डेज बियॉन्ड द रोड एंड एवरीथिंग. So speaking of getting out of the country, we've seen कि पिछले 2-3 साल में or even longer than that we've had a massive brain drain sort of issue जहाँ पे लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं for better opportunities. Do you feel like better opportunities lie abroad only या फिर पाकिस्तान में भी if you have the right will, if you have the right work ethic, you're able to find your place? 100%. आई थिंक कि इट्स नॉट ओनली अब्रॉड कि आप अपने लिए एक करियर बिल्ड कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट ट्रू एट ऑल. येस, अगर आप बात करेंगे मतलब ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको कहाँ पे मिलेंगी, इफ़ यू वर टू ऑब्वियसली कंपेयर अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री टू फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में ऑब्वियसली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पेज ऑब्वियसली बेहतर होंगी, ये ज़ाहिरी बात है. तो बट इफ़ यू वर टू टॉक अबाउट के इज़ इट इम्पॉसिबल टू बी सक्सेसफुल इन पाकिस्तान, तो आई वुड रिस्पेक्टफुली डिसएग्री. आई थिंक इफ़ यू जेन्युइनली पुट इन वर्क एंड इफ़ यू हैव द राइट इन्फॉर्मेशन to consume and if you put in the right effort to implement that information, आप अपने लिए एक बहुत कॉम्पिटेंट बिजनेस सेटअप कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर. येस, द जॉब मार्केट इज़ वेरी स्लो इन पाकिस्तान एंड आपको ट्रजेक्ट्री बिल्ड करने के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है. अक्सर उसी इनकम लेवल के ऊपर आने के लिए जो इनकम लेवल आपका बाहर के मुल्क जाते साथ बन जाता, पाकिस्तान में आपको वही इनकम लेवल अचीव करने में शायद 5-6 साल लग जाएँ. तो येस मतलब फ्रॉम कन्वेंशनल करियर पाथ पॉइंट ऑफ व्यू येस, बाहर जाना वुड बी अ बेटर मूव, बट इट्स नॉट लाइक आप पाकिस्तान के अंदर एक कॉम्पिटेंट करियर नहीं बिल्ड कर सकते. आई वुड स्ट्रांगली डिसएग्री. आई थिंक कि जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं और जिन लोगों के पास स्किल के साथ साथ एक डाइवर्सिफाइड स्किल सेट होता है, आई थिंक उनकी जगह फर्स्ट वर्ल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हर जगह पे होती है एंड आई थिंक कि उन्हें हमेशा अपनी मेहनत का फल ज़रूर मिलता है. एंड स्पीकिंग ऑफ स्किल्स, यहाँ पे बहुत एक डिबेट चलती है कि इंग्लिश, नो इंग्लिश, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, नॉन इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश. Do you feel like Pakistan में because we've also been colonized and speaking English, मैं आपसे सवाल भी English में पूछ रहा हूँ, it adds a bit of a layer to how skilled you are, how credible you are, and how likely you are to get a job. Do you think that makes a difference? And if it does, what should people do that don't speak English? Are they not skilled? दे आर डेफिनेटली स्किल्ड. ऐसी बात नहीं है कि अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं आती तो आप स्किल्ड नहीं हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज तो अंग्रेज़ी ही है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन अंग्रेज़ी के अंदर ही लिखी हुई है. तो आपके लिए अंग्रेज़ी सीखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप फॉर एग्जांपल लेट्स से अभी हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात कर रहे थे, अगर आजकल के टाइम पे एवरीवनस लुकिंग फॉर अ रिमोट जॉब कि भाई बंदा पाकिस्तान में बैठ के किसी यूएस या यूके में बेस्ड कंपनी के लिए काम कर ले एंड उसे नहीं मसला कि यार उसके वर्क आवर्स थोड़े से डिफरेंट होंगे एज लॉन्ग एज के भाई वो डॉलर्स में इनकम अर्न कर रहा है. तो इफ़ यू वांट टू अर्न दैट इनकम एंड इफ़ यू वांट टू बी समवन के जैसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, तो येस इंग्लिश इज़ समथिंग के मतलब जो अगर आप लर्न कर लें तो इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू. नाउ फॉर द क्वेश्चन के मतलब इफ़ समवन डजंट नो इंग्लिश तो आर दे नॉट स्किल्ड इनफ? नॉट एट ऑल. मतलब जिनको अंग्रेज़ी नहीं आती वो भी बहुत स्किल्ड मौजूद हैं, बट इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है कि मतलब अगर आप अपनी स्किल एक्वायर कर सकते थे तो अंग्रेज़ी सीखना आपके लिए इतनी मुश्किल तो नहीं होगी. मतलब एज लॉन्ग एज आप, मुझे लगता है कि अगर आप 3-4-5 महीने कॉन्स्टेंट एफर्ट पुट इन करें टू लर्न इंग्लिश, आई थिंक कि आप एटलीस्ट एक कॉम्पिटेंट लेवल तक आ सकते हैं. येस, शायद आपकी इंग्लिश स्पीकिंग इतनी प्रोफिशेंट ना बने, दैट वुड कम विद एक्सपीरियंस, दैट वुड कम विद एक्सपोजर, दैट वुड कम विद एनालिसिस. बट आई थिंक कि इंग्लिश इज़ अ वेरी लो हैंगिंग फ्रूट के मतलब जो बहुत ईजीली लोग एक्वायर कर सकते हैं एंड उसके इफेक्ट्स आर वेरी लास्टिंग एंड बहुत पॉजिटिव होते हैं. तो आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अंग्रेज़ी सीखें. Right, and as we're speaking about communication, so I've seen, हमारी जो society है वो it doesn't really encourage a lot of communication or at least effective communication. And a very simple example of that is that when we're going out to restaurants, if you look around, families are just sitting quiet, like there's no conversation really happening. How can one become more of like a communicator? How can you be more open to expressing sort of like what you're feeling and be more sort of effective in what you have to say? Definitely, very good question. I think effective communication skills are something के जो आपको
बहुत ज़्यादा एक्सपोजर और बहुत ज़्यादा ट्राइंग एंड टेस्टिंग आउट न्यू थिंग्स के साथ बिल्डअप करने को मिलेगी. इट्स नॉट समथिंग कि जो जिसके साथ आप पैदा होते हैं. येस, सम पीपल आर मोर स्किल्ड in the start, some people are not, some people are naturally extroverted and some are introverted. Those are, there are always differing kinds of people जो अपनी communication बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं. But even if you are an introvert, I was personally an introvert for most of my childhood. तो आज तक जो है वो मैं बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों के अंदर बैठना एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड से ज़्यादा नहीं पसंद करता. मैं कहता हूँ कि यार बस ठीक है, जहाँ तक ज़रूरत है वहाँ तक लोगों से बातचीत करते रहें, सोशलाइज करते रहें. बट आई एम नॉट समवन के वुड बी कंफर्टेबल इन फॉर एग्जांपल अ कॉन्सर्ट सेटिंग और एनीथिंग अलोंग दोस लाइंस. आई एम नेचुरली इंट्रोवर्टेड. बट आई थिंक कि आपको एक्सट्रोवर्ट से भी कोई चीज़ लर्न करनी चाहिए. आपको ये लर्न करना चाहिए कि इन्हें बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं. आपको ये लर्न करना चाहिए कि ये बेहतर तरीके से लोगों को एंगेज कर लेते हैं, ये बेहतर तरीके से अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस कर लेते हैं. तो व्हाट कैन आई एग्जैक्टली लर्न फ्रॉम दैम? Well, they put themselves through more exposure and I don't put myself through that much exposure. Well, if I were to put myself through that exposure, it would be very uncomfortable. तो yes, आपको अपनी comfort zone से बाहर निकलना पड़ेगा. अगर आप अपनी comfort zone से बाहर नहीं निकलते, वो कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है. तो अगर आप डर के आगे जाने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर आपको जीत नहीं मिलेगी. Uzair, we're gonna try to wrap this up soon, but I just want to know कि आपके ख्याल में पाकिस्तान में जो एक youth हमारी है, is there something wrong with their work ethic? Are we lacking something? And if we are, what do you think it is? हम लैक ये करते हैं कि हमें सारी चीज़ें इंस्टेंटली चाहिए. हम लोग वेट नहीं कर सकते. वी कांट स्टिक with delayed gratification. जो भी चीज़ दुनिया में अच्छी है जो आप अचीव करना चाहते हैं, that will take a lot of effort, it will take a lot of time, it will take a lot of sacrifice. And our nation is not prepared to put in that work to ensure कि भाई they'll be okay with that sacrifice, they'll be okay with putting in that effort. कोई भी चीज़ आपको effort के बाद ही मिलेगी. अब हम लोग बेसिकली अयाश पसंद हैं. हम लोग चाहते हैं कि हमें बैठे बैठे हमारे पैसे बनते रहें. अगर हम लोग फॉर एग्जांपल किसी बंदे का पेड प्रोग्राम खरीदें तो हम लोग उसी वक्त अमीर हो जाएं. हम लोग जिम जाना शुरू करें तो उसी वक्त हमारी बॉडी बन जाए. बट यू हैव टू रियलाइज़ कि इतनी जल्दी इतनी कोई सब्सटैंशियल सक्सेस अचीव नहीं की जा सकती. सारी चीज़ों में टाइम लगता है. इलॉन मस्क अगर आजकल के टाइम में जो है वो इस लेवल के ऊपर बैठा हुआ है तो इस वजह से बैठा हुआ है बिकॉज ही पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट. जो भी आपके आइडल्स हैं, यू माइट हैव एनी काइंड ऑफ आइडल, आप कहते हो कि यार मैंने इस जैसा बनना है. वेल, इफ़ यू ट्रूली वांट टू बी लाइक दैट पर्सन तो आस्क योरसेल्फ कि आर यू विलिंग टू पुट इन द वर्क दैट guy did? बिकॉज दैट इज़ द फंडामेंटल. तो हम लोग अयाश हैं. आपको जिस तरह इस साल नज़र आया, रिसेंटली जो है वो मार्कअप्स जो है वो डिक्रीज़ हुए हैं डाउन टू 12%. बट उससे पहले 20-22% तक पहुंच गए. तो सारे लोगों ने अपने पैसे बैंकों के अंदर डाल दिए थे. लिक्विडिटी मार्केट के अंदर कम्प्लीटली ख़त्म हो गई थी. एंड अब जो है सारे लोगों ने जब पैसे बैंकों के अंदर डाल दिए, वो यही चाहते थे कि भाई उन्हें बैठे बैठे पैसे मिलते रहें. तो हम लोग कौम ही ऐसे हैं, हम लोग चाहते हैं कि भाई हमें चीज़ें इंस्टेंटली मिलती रहें. तो ये चीज़ एक बहुत बड़ा फंडामेंटल फ्लॉ है. एंड आई थिंक अगर हम लोग इस चीज़ को नहीं फिक्स करते कि वी स्टिक इन फॉर डिलेड ग्रेटिफिकेशन तो हम लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते एज अ नेशन. Right. Is there any final words? I mean, this was a very good final word, so I'll take that. But anything else that you want to tell the young boys, young girls, the youth of the country, and also people in general, kya kare that just makes our society a better place to exist? I think you should be a positive force for society. I think you should always be trying to empowering others around you. Don't be trying to pull others down with you. Don't be the kind of student जो अपना नोट्स छुपा के रखता है क्योंकि अगला बंदा जो है वो उसके नोट्स पढ़ के ज़्यादा उससे मार्क्स ना ले ले. ट्राई टू बी एम्पावरिंग अदर्स. आपको अपने हिस्से का रिस्क मिल के रहेगा, वो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता. वो बहुत पहले लिख दिया गया था. तो ज़रिया भी लिखा हुआ है, उसकी मिकदार भी लिखी हुई है. तो उस चीज़ के बारे में टेंशन ना लें. दूसरों को हेल्प करें. ट्राई टू एम्पावर अदर्स and make sure कि you are always constantly putting yourself outside of your comfort zone. That is of paramount importance for you as a young person. And I think if you constantly do this and आप constantly अल्लाह को दिखाते हैं कि you're willing to put in that effort, तो वो जल्द से जल्द जो है वो आपको इस चीज़ का सिला ज़रूर देगा. अल्लाह कभी भी किसी बंदे की मेहनत ज़ाया नहीं होने देता और आपकी भी नहीं होने देगा, सिर्फ और सिर्फ अगर आप उसे दिखाते हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं. तो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम. एंड लास्टली आई वुड जस्ट लाइक टू से कि फॉर दोज ऑफ अस हु आर क्लाइंबिंग टू द टॉप ऑफ द फूड चेन, देयर कैन बी नो मर्सी. देयर इज़ बट वन रूल, हंट और बी हंटेड.
Thank you so much, Uzair. Thank you for that wonderful parting word. And of course, thank you for being here and giving us all that guidance, help. And, I really feel like I feel and I hope that our audience and our viewers can sort of take back things that you've sort of told us. So thank you so much for Thanks for joining having me. us. I had a great time. Thank you.